dear students, we are here again with part 3 of the lesson utility analysis. So we have to begin with the law of diminishing marginal utility today. This question usually been asked for 8 marks, sometimes for 4 marks, and now it is commonly being used under activity based question, that is question number 5, for 4 marks. As far as for 4 marks it is concerned, you may get to write about the assumptions of the law. Otherwise the table will be provided to you and you have to fill in, that also half done table will be provided to you. You have to complete the table for that, and you have to draw the diagram also. So it depends on the type of question which they ask. You have to keep yourself ready with the law of diminishing marginal utility along with the statement, assumptions, table, that is schedule, its graph, and the explanation of the diagram, etc. So let's begin with the law of diminishing marginal utility. This law was first proposed by Professor Gaussen but was discussed in detail by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, published in 1890. So who was the one who has coined or who has initiated the term, or who has initiated to start on the work on the law of diminishing marginal utility? It was Professor Gaussen, and then later it was explained or discussed in detail by Professor Alfred Marshall. Okay. Now here the law of diminishing marginal utility is universal in character. That is, wherever you go in the world, whichever corner of the world you will go, you will get to see this type of practice among the consumers, like likes and dislikes, taste and habits, and that determines the demand for that particular product or for the services. Okay, so it is universal in character. It is based on the common consumer behavior. As I've told you, it based on consumer behavior. That utility derived diminishes with the reduction in the intensity of want. दैट इज़ एट दी अर्लीस्ट, शुरू में आपको जितनी ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत होती है, आपको वो ज़्यादा पसंद आती है. देन जैसे जैसे उसका इस्तेमाल करते जाते हो, उसका इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम होते जाता है, एंड दैट लीड्स टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. So the law begins with the statement of the law. The statement tells, from the Professor Alfred Marshall's point of view, according to Professor Alfred Marshall, other things remaining constant, the additional benefit, other things remaining constant, the which a person derives from a given increase in his stock of thing diminishes with every increase in the stock that he already has. Okay, so take a case of a person who is very hungry. that is, उसकी इंटेंसिटी ऑफ वांट क्या थी? उसको खाना चाहिए. ठीक है, तो उसके पास जितना भी प्लेट में खाना है वो उसको खाएगा. तो उसकी पहली जो इनिशियल नीड थी, वो उसकी इंटेंस नीड जो थी वो उसकी सेटिस्फाइड हो गई. देन ही फील्स कि मुझे थोड़ा और लेना है, तो थोड़ा और खाएगा. तो उसका स्टॉक बढ़ गया, राइट? जो उसने लिया था उससे ज़्यादा वो ले रहा है, उसका स्टॉक बढ़ गया. और उसको खाने के बाद उसकी सेटिस्फेक्शन थोड़ी और, मतलब he had derived more satisfaction out of its consumption. then he think of के मुझे और थोड़ा कुछ लेना है, तो उसकी सेटिस्फेक्शन जो है धीरे धीरे कम होने लगती है. नाउ ही डजंट वांट एनीथिंग मोर बिसाइड्स व्हाट ही ऑलरेडी हैड. ओके, सो इट डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़. In simple words, you can say that marginal utility that any consumer derives from successive units of a particular commodity goes on diminishing as his or her total consumption of that commodity increases. ठीक है, तो वो जितना खाते जाएगा, जितना इस्तेमाल करते जाएगा, उसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? कम होते जाता है. इन शॉर्ट, द मोर ऑफ अ थिंग यू हैव, जितना आपके पास है, अगर आप उसमें और ऐड करते जाओगे, द लेस यू वांट टू हैव, द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट. तभी आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती, तो उसको आप क्या करोगे? कम यूज़ करना शुरू करोगे. तो द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट. Okay, now since this is a law, so it depends on number of assumptions. So following are the assumptions. Assumptions are like, फ़र्ज़ करते हैं, फ़र्ज़ करना या अज्यूम करना कि ये ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है. तो फॉलोइंग आर द assumptions to the law of diminishing marginal utility.
फर्स्ट अजम्पशन इज़ द रैशनैलिटी। यर इट इज़ अज्यूम दैट, ये फ़र्ज़ किया जाता है कि जो भी कंज्यूमर है वो रैशनल होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, सब उसकी सोचने समझने की सलाहियत जो है, कैपेसिटी जो है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। कंज्यूमर इज़ अज्यूम टू बी रैशनल। इट मीन्स दैट हिज बिहेवियर इज़ नॉर्मल एंड ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। तो उसको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे इससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं, मैक्सिमम है या नहीं। ऑल दोज थिंग्स ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। Second assumption says that utility can be cardinal measurement. The law assumes that utility can be cardinally या numerically measured, यानी हम उसको नंबर में प्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर इजीली पॉसिबल टू नो एंड कंपेयर द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो क्या होगा कि हमें उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझने के लिए, कंपेयर करने के लिए, जो भी आपको यूटिलिटी उससे मिल रही है, जो भी सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है, उसको कंपेयर करने के लिए, मेजर करने के लिए आसानी हो जाती है, पॉसिबल हो सकता है विद दिस। सो यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली। Third assumption of the law is telling you that there should be homogeneity in the units of commodity to be consumed. यानी all units of a commodity consumed are exactly homogeneous or identical in size, shape, color, taste, etc. जिस किसी भी commodity का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वो सब के सब जो है एक ही तरह के होने चाहिए, चाहे वो उसके साइज़ का हो, शेप का हो, कलर हो, टेस्ट हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। सारे के सारे यूनिट्स जो भी आप अंडर कंज्यूमर को दे रहे हो फॉर ऑब्जर्वेशन, इट शुड बी होमोजीनस। ठीक है। सपोज इफ़ वी आर पुटिंग अ कंज्यूमर अंडर ऑब्जर्वेशन के उसका हमें क्या क्या चेक करना है, उसका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या उसको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, टोटल यूटिलिटी जो भी उसका अगर हमने ऑब्जर्व करना है तो हम उसको 6 ऑरेंजेस दे रहे हैं खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए हम उसको 6 ऑरेंजेस दे रहे हैं। तो वो ऑरेंजेस बिल्कुल एक ही साइज़ के, एक ही कलर के, एक ही शेप के, एक ही टेस्ट के होने चाहिए। टेस्ट तो ऑब्वियसली आप खाने के बाद ही पता करोगे वो टेस्ट का मीठा है या खट्टा है। तो इट्स लाइक कि जो भी आप उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रख कर देखना चाहते हो फॉर मेजरिंग द यूटिलिटी, द कमोडिटी शुड बी होमोजीनस। देन जितने भी, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि 6 ऑरेंजेस इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग, तो ये ज़रूरी है कि वो कंज्यूमर उन 6 के 6 ऑरेंजेस को एक साथ खाए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद लाइक एक के बाद दूसरा सक्सेस, उसको क्विक सक्सेशन में खाना है। ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड इन क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। बिकॉज आप अभी एक खा रहे हो, कंज्यूमर बोलेगा कि मैं भी एक खाऊंगा, एक आधे घंटे के बाद खाऊंगा, मुझे ऑब्जर्व करना है तो मैं भी आधा घंटे बाद खाऊंगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको उसको कहना है कि आपने 6 के 6 ऑरेंजेस एक साथ में एक के बाद एक खाने हैं। देन रीजनेबिलिटी, ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड आर ऑफ रीजनेबल साइज़। एकदम रीजनेबल साइज़ होनी चाहिए कि वो कंज्यूमर आराम से उसको खा सके। दे आर नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल। सपोज़ कोई जो है थर्स्टी आदमी को आपको ऑब्ज़र्व करना है, प्यासा इंसान है, उसको आपने ऑब्ज़र्व करना है कि वो कितने ग्लास में जो है उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। या तो आप ग्लास दे रहे हो तो ग्लास से ही आपको उसको जो है ऑब्ज़र्व करना है, लाइक 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, 4 ग्लासेस ऑफ वाटर, 5 ग्लासेस ऑफ वाटर, तो वो आपका ग्लास के हिसाब से ही आप उसको जो है ऑब्ज़र्व करोगे। यू शुड नॉट प्रोवाइड हिम विद अ जग फुल ऑफ वाटर, अदरवाइज कप फिल्ड विथ वाटर विच कैन बी टेकन अप विद द हेल्प ऑफ स्पून। चम्मच से पानी पिलाकर आप उसकी जो है ऑब्जर्वेशन नहीं ले सकते। तो ना बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। कॉन्स्टेंसी, यहाँ पर ये अज्यूम किया जाता है कि जितने भी रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर से रिलेटेड हैं, लाइक उसका इनकम, उसका टेस्ट, हैबिट्स, उसके चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, सब कुछ जो है इट शुड रिमेन कांस्टेंट, सेम होना चाहिए। वहाँ पर कोई भी जो है अप्स एंड डाउन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा उसको हमने 6 ऑरेंज देने हैं, तो 2 ऑरेंज खाने के बाद में कंज्यूमर बोलेगा भाई मुझे पसंद नहीं है, इसके बदले में मुझे तुम दे दो कुछ और, लाइक एप्पल दे दो या ग्रेप्स दे दो। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको ये
अज्यूम करके चलना है कि उसे हम जो भी देंगे उसकी इनकम, टेस्ट, हैबिट, लाइक्स, डिसलाइक्स वगैरह जो भी है वो सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आनी चाहिए. It is also assumed that marginal utility of money is also assumed to be constant. ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इस चीज़ को अज्यूम किया जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है मनी की वो हमेशा कांस्टेंट रहे. देन divisibility. The law assumes that the commodity consumed by the consumer is divisible so that it can be acquired in a small quantities. तो जो है डिविजिबल साइज़ की जो क्वांटिटीज़ है, कमोडिटीज़ है, वही लेनी चाहिए, बल्कि कमोडिटीज़ आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते. ओके. देन लास्ट वन इज़ टेलिंग यू दैट सिंगल वांट. अ गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अ सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन. तो यहाँ पर ये अज्यूम किया जाता है कि एक वक्त में एक ही वांट को जो है कंज्यूमर की सेटिस्फाई किया जाता है. गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अ सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन. Okay, so it is just an assumption. In practice it is not possible. Then the law assumes an experience of a single want which is completely satiable at a point of time. तो एक वक्त पर एक ही want को satisfy किया जा सकता है under this law. So these are the 8 you can say assumptions to the law of diminishing marginal utility. अगर आपको ये question 8 मार्क्स के लिए आ रहा है, like explain, स्टेट एंड एक्सप्लेन, क्वेश्चन आपका ऐसे स्टार्ट होता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो एंड उसका सेकेंड पार्ट होता है व्हाट आर इट्स असम्पशंस. अदरवाइज जो हम एक्सेप्शंस देखेंगे वो भी पूछता है व्हाट आर दी एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो जो फर्स्ट पार्ट आपका है स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो आपको 5 मार्क्स के लिए आता है. और जो सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन या व्हाट आर इट्स अजम्पशंस, तो वो आपको 3 मार्क्स के लिए आता है. तो आपको ये आठों के पॉइंट्स आपको वहाँ पर लिखने हैं फॉर 3 मार्क्स. ओके. After the assumptions, we can explain the law of diminishing marginal utility with the help of an imaginary schedule and a graph based on the schedule. This schedule is nothing but what we had seen previously, relationship between TU and MU. उसका एक पार्ट आपके सामने लिया है, that is marginal utility का. यहाँ पर units of commodities है 1 to 7. units of commodities x say of oranges, apples, grapes, whatever. नॉट ग्रेप्स, ग्रेप्स बहुत छोटा होता है, तो ऑरेंजेस या एप्पल्स हम ले रहे हैं यहाँ पर. ठीक है. देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ एन एप्पल टेकन अप बाय द कंज्यूमर प्रोवाइड्स इन 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन. ठीक है. देन जैसे ही वो सेकेंड पर जाता है उसका मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट होता है डिमिनिश होना, कम होना. थर्ड पर और कम होता है, फोर्थ पर और कम होता है, फिफ्थ पर आकर जो है वो 2 हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पहुँच जाती है. एंड देन एट 6 यूनिट इट बिकम्स 0. मार्जिनल यूटिलिटी आपकी बन जाती है 0. यहाँ पर उसको जो है पूरा टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है एट 6th एप्पल. नाउ इफ़ ही इज़ सपोज टू टेक अप 1 मोर, दैट इज़ 7th वन अगर वो लेता है, तो ही विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग डिसयूटिलिटी विद इट. अब उसको और एप्पल्स नहीं खाने हैं. द मोर यू ऐड more of a thing, the more you add to the stock that you already has, the less you want to have more of it. देखिए जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो, यहाँ बढ़ते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है. Okay, so this table shows that marginal utility keeps on diminishing with increase in consumption. Further it becomes 0 and then finally it becomes negative. Okay, the same can be explained with the help of a graph here. Here you can see y axis and x axis. y axis पर आप marginal utility बता रहे हो, x axis पर आप units of commodity बताते हैं. units of commodity आपकी 1 to 7 है, आपने लिख दिया. and then marginal utility जो है आपकी highest है 10 and the least है 2. so we are taking 2 4 6 8 and 10. okay, then at first unit आपकी marginal utility 10 थी, उसको plot कर दिया, locus लगा दिया. second पर 8 है, उसको लगा दिया. थर्ड पर जो है 6, देन फिफ्थ पर 4, फिफ्थ पर हो रहा है 2, एंड देन सिक्स्थ
यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, दैट इज 6th एप्पल जब कंज्यूमर खा रहा था तो उसकी टोटल यूटिलिटी हो गई 0। एंड देन उसके बाद अगर वो लेता है तो इट विल गो इनटू नेगेटिव क्वाड्रेंट एंड ही विल एक्सपीरियंस डिसयूटिलिटी ओवर देयर। ठीक है, तो यू कैन सी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज डिमिनिशिंग यानी ये गिरते जा रहा है ना, कम होते जा रहा है। इट इज़ डिमिनिशिंग, ओके, moving from left to right and then finally reaches into the negative quadrant, giving the consumer disutility after the consumption of one more unit of commodity. So in the above diagram जिस मैंने आपको बताया वही चीज़ है। units of commodity are measured on x axis and marginal utility is measured on y axis. various points of mu are plotted on the graph, जैसे आपने देखा ये प्लॉट किया गया है। and then as per the given schedule when the locus of all the points is joined mu curve is derived। जब हमने इसको ज्वाइन किया तो mu curve हमारा बन गया। mu curve slopes downwards from left to right, which shows that marginal utility goes on diminishing with every successive increase in the consumption of a commodity। तो ये जो है आपको बताता है कि इस तरह से आपकी marginal utility कम होती जाती है and then it becomes 0 and finally it turns into negative। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 0, मार्जिनल कर्व इंटरसेप्ट्स एट एक्स एक्सिस, जो हमने डायग्राम में देखा यहाँ पर जब ये 0 पर आया मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, सॉरी कमोडिटी जो है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 0, तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इंटरसेप्ट्स एट एक्स एक्सिस। फर्दर कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी ब्रिंग्स डिसयूटिलिटी or negative utility, which is shown by the shaded portion in the diagram. So with this your law of explanation with the help of schedule and graph is done. Another part to the law of diminishing margin and utility is the exceptions, मतलब ऐसी conditions जहाँ पर law of DMU applicable होता ही नहीं है। तो ये देखिए आप, following are the exceptions to the law of diminishing margin and utility. First is hobbies। हॉबीज़ यानी आपकी आदत, आपको क्या चीज़ पसंद है आप उसका जो है स्टॉक करते जाते हो। इन सर्टन हॉबीज़ लाइक कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प्स, जिनको स्टैम्प कलेक्शन की आदत है, कॉइन्स की, रेयर पेंटिंग्स जमा करने की, म्यूज़िक सुनने वालों की, रीडिंग करने वालों की। इन दिस केस आपका मार्जिनल यूटिलिटी गिरता नहीं है, कम नहीं होता है, बल्कि बढ़ता जाता है। The law does not hold true because every additional increase in the stock gives more pleasure and this increases marginal utility. However, this violates the assumption of homogeneity। homogeneity नहीं है, देखिए स्टैम्प्स जो हैं आपके एक ही तरह के नहीं आप कलेक्ट कर रहे हो, कॉइन्स भी जो है वो आप ही तरह के, एक ही तरह के कॉइन्स आप कलेक्ट नहीं कर रहे हो, पेंटिंग्स भी आप डिफरेंट ले रहे हो, म्यूज़िक भी आप एक ही तरह का गाना नहीं सुन रहे हो, रीडिंग का भी सवाल है तो आप जो है अलग अलग तरीके की रीडिंग्स कर रहे हो। तो होमोजेनिटी वाला अजम्पशन और कंटिन्यूटी वाला अजम्पशन जो है यहाँ पर वायलेट होता है, यहाँ पर यूज़ नहीं होता है। ओके, इन दिस केस, ऑलराइट। देन वी हैव सेकेंड एक्सेप्शन ऑफ to the law of diminishing marginal utility is that of miser। miser यानी कंजूस। कंजूस एक ऐसा इंसान है जिसको पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। इन दिस केस चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस तरह का एक प्रोवर्ब है। तो यहाँ पर माइजर जो है एवरी एडिशनल रुपी गिव्स हिम मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टेंड्स टू इंक्रीज with an increase in his stock of money। However, this situation ignores the assumption of rationality। यहाँ पर कंज्यूमर रैशनल नहीं है, उसे सिर्फ पैसे से प्यार है, उसको कितनी भी ज़रूरत हो पैसा खर्च नहीं करेगा, बहुत कम उसमें से खर्च करेगा। ओके, तो यहाँ पर कंज्यूमर जो है रैशनल नहीं है। थर्ड एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द एडिक्शन। एडिक्ट, ड्रग एडिक्ट्स। ओके, इट इज़ ऑब्जर्व इन केस ऑफ अ ड्रंकार्ड, दैट इज़ जो शराब पीता है, दैट द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन इंक्रीजेस विथ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ द लिकर कंज्यूम्ड। जितना वो शराब पीते जाएगा उतना उसको नशा बढ़ता है। सो MU रिसीव्ड बाय द ड्रंकार्ड में इंक्रीज।
एक्चुअली इट इज़ ओनली एन इल्यूजन, उसको पता नहीं उससे उसको फ़ायदा हो रहा है या नहीं, इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन, उसका साइकोलॉजिकल फीलिंग है. दिस कंडीशन इज़ सिमिलर टू ऑलमोस्ट ऑल एडिक्शन. तो इट्स नॉट लाइक सिर्फ शराबी लोगों को ही इसमें मज़ा आता है. चेन स्मोकर्स हैं, टोबैको वगैरह खाने वाले हैं, गुटखा वगैरह खाने वाले हैं, उनको उसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है. तो जितना वो लोग यूज़ करते हैं उतना उसमें उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है. हावेवर दिस वायलेट्स द अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी. यहाँ पर कंज्यूमर रैशनल नहीं है, उसे पता नहीं कि उसके सेहत के लिए वो अच्छा है या नहीं, बस उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है इसलिए वो उसको कंज्यूम कर रहा है. देन पावर, किस्सा कुर्सी का. दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू द लॉ बिकॉज व्हेन अ पर्सन एक्वायर्स पावर, एक बार सत्ता में आ जाने के बाद हिज लस्ट फॉर पावर इंक्रीजेस. अब मैंने कुर्सी जो है जमा लिया, मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन बना चुका हूँ, तो मुझे यहाँ से हटना नहीं है, इससे मुझे और आगे बढ़ना है. ही डिज़ायर टू हैव मोर एंड मोर ऑफ इट. हावेवर दिस अगेन वायलेट्स द रैशनैलिटी अजम्पशन. यहाँ पर उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन है, मतलब उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग है कि बस मुझे यहाँ पर से हटना नहीं है, मुझे अपने पावर को, अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं है. देन मनी. इट इज़ सेड दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर बिकम्स ज़ीरो. पैसा किसी को नहीं करता है ना बेटा, ज़रूरत है तभी इंसान कमाता है और पैसा जो है जमाता है. इट इंक्रीजेस व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस. थोड़ी बचत भी करता है ना. दिस इज़ बिकॉज मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, पैसे के बगैर जीना मुश्किल है. आपको किसी भी चीज़ को ख़रीदना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए, विच इज़ यूज टू सेटिस्फाई वेरियस वांट्स. हावेवर according to some economists, this law is applicable to money too. For example, marginal utility of money is more to a poor person than to a rich person. This comes for, do you agree or not? ट्रू और फॉल्स में भी आता है. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ मोर टू अ पुअर पर्सन देन टू अ रिच पर्सन. हाउ? एक गरीब इंसान जो महीने के 5,000 कमाता है, उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ मोर. एट द सेम टाइम एक इंसान जो महीने के 50 lakhs कमाता है, उसके लिए 5,000 का कोई माने नहीं है. उसके लिए 5,000 एक रात में उड़ाने का हिसाब है, राइट. तो मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है गरीबों के लिए ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिच पर्सन. हावेवर दीज एक्सेप्शंस आर ओनली अपरेंट. मतलब it is just an apparent one since they violate some or the other assumptions of the law and hence they are not real exceptions. Okay, तो actually इस तरह की exceptions जो हैं हम गिनते नहीं हैं, but it is there. Then as every law has the assumption and exception, it has criticism also. ऐसी कौन सी points हैं जहाँ पर ये law को हम accept नहीं कर सकते. तो there are 5 criticisms to the law of DMU. The law of diminishing marginal utility is criticized on the following grounds. Number 1, it has unrealistic assumptions. ऐसे जो है चीज़ें अज्यूम की गई हैं जो होती नहीं है. लाइक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ बेस्ड ऑन वेरियस अजम्पशंस लाइक होमोजेनिटी. एक वक्त में हम एक ही चीज़ कैसे खा सकते हैं, कंटिन्यूटी, एंड देन फटाफट एक के बाद दूसरा खाना है. कॉन्स्टेंसी, हमारी आदतें कॉन्स्टेंट होना चाहिए. कंज्यूमर हमेशा रैशनल होना चाहिए. इस तरह की बहुत, मतलब जो भी आपने अजम्पशंस देखे और तमाम की तमाम कहा जाता है कि अनरियलिस्टिक है. बट इन रियलिटी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फुलफिल ऑल दीज कंडीशंस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. एक वक्त में सब कुछ नहीं हो पाता. देन कार्डिनल मेजरमेंट. फीचर्स में हमने देखा कि इट इज़ कार्डिनली या ऑर्डिनली हम उसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन अज्यूम ये किया है कि इट इज़ कार्डिनली, इट कैन बी डन cardinally measured. The law assumes that utility can be expressed cardinally, so it can be added, compared and presented through a schedule. लेकिन इन रियलिटी अगर हम देखें तो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज यूटिलिटी इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. वो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, आप उसको नंबर्स में, न्यूमेरिकल या फिर ग्राफ टेबल में आप उसको समझा नहीं सकते. Next criticism to the law is indivisible good. The law is not applicable to indivisible good and bulky goods like refrigerator, car, TV sets etc. ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक वक्त में एक ही खरीद सकते हैं, 3, 4, 5 इस तरह की नहीं कर सकते. ठीक है, कार हुआ, टेलीविज़न हुआ, ये सब कुछ आप एक वक्त में एक ही खरीद सकते हैं, विच आर नॉर्मली परचेज इन सिंगल यूनिट एट अ टाइम.
देन कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इट इज़ अज्यूम कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो शुड रिमेन कांस्टेंट, सेम होना चाहिए, whereas it is not possible. The law assumes that marginal utility of each unit of money remains constant. However, critics ने ये आर्ग्यू किया that marginal utility of money differs from person to person. जैसे आपने पहले देखा कि गरीब के लिए ज़्यादा है, अमीर के लिए कम. It is influenced by changes in prices, stock of money, etc. ठीक है, तो वो कांस्टेंट नहीं रह सकती, बिकॉज कभी कभार जो है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की वजह से भी जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बढ़ती है या कम होती है, या फिर आपके पास कितनी जमा पूंजी है, डिपेंड्स ऑन दैट. एंड देन सिंगल बॉन्ड, इट इज़ अज्यूम कि एक वक्त पर एक ही वांट जो है सेटिस्फाई हो सकती है, वेर एज इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. द लॉ इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ सिंगल वांट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. However, in reality, a man has to satisfy many wants at a point of time. Suppose अभी बकरा ईद थी, आपको कहा गया कि आप जाकर के ड्रेस लेकर आओ, तो आप ड्रेस लेने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप सिर्फ ड्रेस नहीं लोगे, उसके साथ में कैप है, शूज़ है, एक्सेसरीज़ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो आप एक वक्त में एक वांट कंप्लीट नहीं कर सकते. सो दीज वर द क्रिटिसिजम्स टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. Along with the criticisms, we have significance also to the law of diminishing marginal utility. यानी कहाँ कहाँ पर उसका इस्तेमाल होता है. In spite of the criticism, इन criticisms होने के बाद भी the law of diminishing marginal utility is very popular and an important law in economics because of its universal application. सबसे पहले it is useful to the consumer. This law creates awareness among the consumers. कैसे? टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेज. आपके पास जितना भी लिमिटेड रिसोर्स है उसको आप किस तरह से कैसे उसका इस्तेमाल करके अपनी नीड को कंप्लीट कर सकते हो. सो इट इज़ नेसेसरी टू डाइवर्सिफाई द कंजम्पशन. तो जो मोस्ट अर्जेंट वांट है उसको पहले सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद लीस्ट अर्जेंट पर आप जाएंगे. सेकेंडली, इट इज़ यूजफुल टू द गवर्नमेंट. The law is useful to the government in framing various policies such as progressive tax policy, trade policy, pricing policy, etc. तो कंज्यूमर्स की लाइक्स डिसलाइक्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो है ये तमाम पॉलिसीज़ बनाती है. देन बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज़. What is paradox of value? Paradox of value is difference between the value in exchange and value in use. किस तरह से? The law of diminishing marginal utility helps us to understand the paradox of values. It includes goods that have more value in use and zero or less value in exchange. ठीक है? Goods which have more value in use, जिसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू इन एक्सचेंज जो है बहुत कम है या फिर ज़ीरो है, जैसे एयर, वाटर, सनशाइन एक्सेट्रा. ये हुआ. देन एज वेल एज गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन एक्सचेंज, ऐसी कमोडिटीज़, ऐसे गुड्स जिनको आप बेचने जाओ तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे. एंड लेस वैल्यू इन यूज़ सच एज गोल्ड, डायमंड्स एक्सेट्रा. ठीक है. So this is called as paradox of value. This usually comes for 2 marks, like identify and explain the concept में भी आता है. Then it forms the basis to the law of demand. The law of demand is based on the law of diminishing marginal utility. According to this law of demand, the quantity demanded of a good rises, बढ़ती है, with a fall in price. Inverse relationship देखो, डिमांड बढ़ता है जब प्राइस कम होता है, और डिमांड कम होता है विद एन इंक्रीज इन प्राइस जब प्राइस बढ़ता है. व्हेन कंज्यूमर परचेज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी स्टेडीली डिक्लाइंस. हेंस ही वुड बाय एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी ओनली एट अ लोअर प्राइस. ठीक है. अगर बार बार हम किसी चीज़ को खरीद रहे हैं, देन हमें लगेगा कि अरे इससे कम दाम में भी कुछ और मिलना है, तो वी प्रेफर टू बाई that. So these were the significance to the law of diminishing